Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem Mother to Son from New Oxford Modern English Class 6. Comprehension. Answer the following questions. Question number 1 is, who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? Who is speaking in the poem? Poem में कौन बात कर रहा है and to whom are the words addressed? और किसको मुखातिब किया जा रहा है, यानी किससे बात हो रही है? A mother is talking to her son. एक माँ बात कर रही है अपने बेटे से. Question number 2 is, what does the speaker compare her life with? स्पीकर यानी बात करने वाली अपने जो वर्ड्स उसने बताए अपनी ज़िंदगी को उसने किन के साथ कंपेयर किया है? She compares her life with a bare floor, torn and uncarpeted. वो अपनी ज़िंदगी को का मुवाजना करती है बेगुलाफ फर्श के साथ, यानी जिसपे क्लीन नहीं है और वो कटा फटा है. What does the speaker encounter on the stairs? सीढ़ियों पे यानी अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियों में उसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किन चीज़ों का वो सामना करती है? She encounters tacks and splinters. उसे कील और फांसे मिलती हैं. Question number 4. Even though there have been obstacles in the way, what was the speaker done to continue her journey? हालांकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उसने अपनी जर्नी जो है वो कैसे जारी रखी? She has always moved on. वो हमेशा चलती रही without getting disheartened. अब दिल बर्दाश्ता ना हुए बगैर by the obstacles परेशानियों से, in the way रास्ते में आने वाली मुश्किलात से दिल बर्दाश्ता हुए बगैर वो उसने अपना सफ़र जारी रखा. Which 3 pieces of advice does the speaker give the boy? 3 advices जो मदर जो है अपने सन से करती है. She asks him not to turn back. वो उसे कहती है कि turn back नहीं करे, यानी मुड़े नहीं, पीछे मत देखे. Not to sit down, बैठ ना जाए, and not to fall, गिर ना जाए. Which sentences are repeated in the poem? इस poem में repeated जो sentences हैं वो यहाँ पे write करने हैं. Life for me ain't been no crystal stairs and still climbing. तो ये sentence इस poem में repeat किया गया है. After reading the questions, let's see next. Working with words. Find all non-standard words used in the poem. Write them out along with their correct meaning and form. पोइम में नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं हमारी टेक्स्ट में, तो इनके सामने उनको करेक्ट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. आइल, आई विल, एंट, हैज़ नॉट बीन, आइज, आई हैव बीन, डोंट, डू नॉट, कॉज, बिकॉज, क्लाइंबिंग, लैंडिंग्स, लैंडिंग्स, गोइंग, इट्स, इट इज़. Question number 2. Write these sentences using standard and grammatically correct English. अब इसमें से standard and grammatically correct करके कुछ words हैं जो non standard है, उनको correct करके लिख देना है. First है, I is expecting a friend for dinner. I have been expecting a friend for dinner. 2. I have been waiting at this bus stop for 1 hour. I have been waiting at this bus stop for 1 hour. I ain't going to the cinema tonight. I am not going to the cinema tonight. Next is, they has been kinder sleepy today. They have been a kind of sleepy today. She stayed at home cause she was ill. She stayed at home because she was ill. You ain't doing this at all if you find it's too difficult to do now.
You are not doing this at all if you find it is too difficult to do now. Next is learning about language. Pick out the statements, questions, commands and exclamations. Here are some sentences and we have to find out statements, questions, commands and exclamation. First of all students, what is a statement? इंफॉर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिले वो होती है स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो वो होता है क्वेश्चन। कमांड में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कोई ऑर्डर किया जाए तो वो होते हैं कमांड। एक्सक्लेमेशन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमारी सडन फीलिंग और इमोशन को शो किया जाए तो वो होते हैं एक्सक्लेमेशन। इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद उनके सामने राइट कर देना है कि वो किस कैटेगरी में है आया, कि वो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमांड्स हैं या एक्सक्लेमेशन है, वो इनके सामने राइट कर देना है। फर्स्ट इज द बोर्ड्स आर टॉर्न अप। अब इसमें कुछ हमसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, ना कमांड है ना एक्सक्लेमेशन है, जस्ट एक स्टेटमेंट है। द बोर्ड्स आर टॉर्न अप, बोर्ड्स टॉर्न अप हो चुके हैं, तो एक स्टेटमेंट है। वी विल राइट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट है डिड यू हियर व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। सो इट्स अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, इसे सेफली ट्रंक में रखो, तो ये एक ऑर्डर किया जा रहा है तो ये कमांड। इट विल चेंज कलर इन 2 hours, ये 2 घंटों में अपना कलर बदल देगा, तो ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट है। थ्रो इट अवे, इसे दूर फेंक दो या इसे फेंक दो, तो ये ऑर्डर किया जा रहा है, इस कमांड। आई बर्न्ड इट यस्टरडे, मैंने इसे कल जलाया, तो ये स्टेटमेंट है। हैव यू बर्न्ड इट येट, क्या तुमने अभी तक इसको जला दिया, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो। स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनाने हैं, और जब हमने क्वेश्चन बनाना होता है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज किए होंगे उन्हें हम पहले ले आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर हमारा वर्ब आएगा और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इट हैड टैप्स इन इट, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो शुरू में आ जाएगा। हैड इट टैप्स इन इट एंड पे क्वेश्चन मार्क। There were places with no carpet on the floor. Were there places with no carpet on the floor? And पे question mark. He sat down on the grass. ये past indefinite है, तो उसको हमने जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो did का यूज करते हैं, तो did इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। Did he sit down on the grass? And पे question mark. She finds it hard, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू डज आएगा, तो यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ शी के साथ डज लगेगा, वो शुरू में आ जाएगा। डज शी फाइंड इट हार्ड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हियर इज द एक्टिविटी फ्रॉम योर वर्कबुक ऑफ इंग्लिश, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स and exclamation. Talk about what the people in this picture might be saying. इस पिक्चर को देखिए लोग क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, और इन पे ये ABCDEFGHI तक ये इनकी नंबरिंग थ्रू लेटर्स यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इनके सामने बताना है कि ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है या एक्सक्लेमेशन है। राइट व्हाट यू थिंक इज बीइंग सेड बाय ईच स्पीकर। The speakers have a number. The hint at the beginning of each line tells you whether a question, a command, a statement or an exclamation is being used. Okay. A जो है उसमें क्या कह रहा है कि may we cross the road now, क्या हम क्रॉस कर ले रोड, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके सामने हम लिख देंगे क्वेश्चन। B है yet not, अभी नहीं, ट्रैफिक इज जैम, ट्रैफिक जैम है, तो ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, इट इज स्टेटमेंट। फिर ए है यहाँ पे यस यू आर सेइंग राइट, हाँ ठीक कहते हो, तो ये स्टेटमेंट है।
2 cars are bumped, इसमें अचानक से एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको नजर आ रहा है, तो ये एक्सक्लेमेशन है, यानी इसमें अचानक ही जो भी हमारे माइंड में आया या हमारी इमोशन फीलिंग सडन हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है एक्सक्लेमेशन। स्टॉप राउंड हियर, यहाँ रुक जाओ, तो ये कमांड है, इसमें ऑर्डर किया जा रहा है। वेयर इज द होटल, वेयर इज द होटल, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इट इज क्वेश्चन। यू मस्ट नो शी शाउटेड, तुम्हें पता होना चाहिए, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, तो ये एक्सक्लेमेशन है। ये हमें मार्क्स से भी पता चला कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। वूफ, वूफ क्या है? वूफ एक्सक्लेमेशन है। वूफ एक्सक्लेमेशन, वूफ एक्सक्लेमेशन, वूफ एक्सक्लेमेशन। ओके जी, नेक्स्ट इज हाउ मच डू यू नो, आप कितना जानते हैं? राइट द नंबर्स ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड द नंबर्स ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे सामने हमने क्या करना है? स्टेटमेंट्स के सामने अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने वहां पे ट्रू लिख देना है बॉक्स में, अगर वो फॉल्स है तो हमने फॉल्स राइट कर देना है। द वर्ड हैप्पी इज अ नाउन, वर्ड हैप्पी जो है खुश होना, ये नाउन है? नो, ये वर्ब होता है, तो यहाँ पे फॉल्स। द वर्ड क्वर्ल्ड, क्वर्ल्ड होता है झगड़े, इज अ वर्ब, यस ट्रू। इन योर डिक्शनरी द वर्ड लुक कम्स इमीडिएटली बिफोर द वर्ड लूम, लुक आ जाता है फौरन लूम के बाद, पहले सॉरी, लुक लूम से पहले आ जाता है, तो यस इट्स ट्रू। प्लेजेंटली इज एन एडवर्ब, प्लेजेंटली, यस ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इट्स ट्रू। इन योर डिक्शनरी द वर्ड हैंगर कम्स इमीडिएटली बिफोर द वर्ड हैंड, हैंड से पहले फौरन आता है हैंगर, फॉल्स है ये। अ हैंगर इज समथिंग यू हैंड क्लॉथ्स ऑन, फॉल्स। यू आर रीडिंग दिस बुक, ट्रू। एन एडवर्ब इज अ वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ब, वर्ब के एंड पे जो ऐड किया जाए वो होता है हमारा एडवर्ब, तो ये इसकी फॉल्स डेफिनेशन है। द वर्ड्स लेटर, लेटर एंड लेटेस्ट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये 3 वर्ड्स हमने देखने हैं कि क्या ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। LAT, LATTLE, जी पहले ए आएगा और ये डबल टी वाला बाद में आएगा और डबल टी के बाद यू आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इट्स ट्रू। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अनदर वर्ड। प्री से हमें पता चल जाता है कि पहले आएगा ये वर्ड किसी वर्ड के, बिफोर ये लिखेंगे तो ये एंड पे नहीं आएगा, इसलिए ये फॉल्स है। A stitch in time saves 9 is a famous proverb. A stitch in time यानी saves 9, मतलब कि कोई काम हमने अगर उसके वक्त पर कर लिया तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। जी बिल्कुल, ये एक फेमस प्रोवर्ब है, इट इज ट्रू। टू पुट ऑफ मीन्स टू सेव मनी, नो, टू पुट ऑफ मीन्स का मतलब होता है कि छोड़ देना, कोई काम नहीं करना, तो ये फॉल्स है।